If you are an IGNOU student enrolled in Master of Arts in Anthropology program and looking for complete guidance on the Mani 001 project, then you are in the right place. In this video, I will explain everything you need to know about the Mani 001 project, including how to choose a research topic, prepare the synopsis, select a guide, write the project report, and submit it correctly according to the latest IGNOU guidelines. So if you want to avoid common mistakes and complete your project with confidence, stay with me till the end. You are watching Sumit's Academic Zone. On the screen you can see this is the guideline of Mani 001 Anthropology and Methods of Research. Okay, and this particular guideline is issued by IGNOU for the project of uh, this particular code. Okay, this particular guideline is very lengthy, so I have extracted main information in this particular note from this particular guideline. Okay, so this is the guideline. We'll study most important things from the guideline. So what is MANI 001? Okay, so Mani 1 is the project work course for the Masters of Arts in Anthropology program. It introduces a student to research methodology through a practical research project. The project helps the student to develop research skills, conduct fieldwork, collect and analyze the data, prepare a scientific research report. So basically, Mani 001 is a project report. Now, second is what is the supervisor? Okay, the most important thing you have to know. Every student must complete the project under the guidance of approved project mentor. तो ये किस लिए कहा जाता है, पहले तो आपको ये समझना होगा. The mentor provides academic guidance throughout the project and helps ensure the work flow proper research methodology. Okay, तो पहले पहले आप कोई भी रिसर्च करोगे, ठीक है, तो आपको अगर आपने उसका गाइडलाइन भी देखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है. इसीलिए the first thing is you have to know who is the supervisor, how can he help you. Okay, तो आपको इसके लिए एट द टाइम ऑफ इवन टॉपिक सिलेक्शन यू मस्ट हैव द सुपरवाइजर विथ यू. सुपरवाइजर कैसे हम सुपरवाइजर से मिलेंगे, आई गोना टेल यू. ओके, इससे पहले हम तीसरा जो पॉइंट है ये पढ़ेंगे, हाउ कैन द सुपरवाइजर हेल्प. तो सुपरवाइजर आपको क्या हेल्प कर सकता है. तो सेलेक्टिंग ए सुटेबल रिसर्च टॉपिक, जो मैंने आपको बताया है, जो फर्स्ट और फॉरवर्ड चीज है वो है टॉपिक सिलेक्शन, जिसके लिए आपका सुपरवाइजर हेल्प करेंगे. रिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयरिंग द सिनॉप्सिस, सजेस्टिंग एन एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिव्यूइंग क्वेश्चनर, guiding data collection and analysis, reviewing the draft project report before submission, certifying the originality of the work. तो बेसिकली ये सुपरवाइजर का काम है, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है. अब मैं आपको बता देता हूँ हु कैन बी द सुपरवाइजर. तो MANI 001 प्रोजेक्ट के लिए सुपरवाइजर कौन हो सकता है. ओके, तो लेट्स सी गाइडलाइन क्या कहता है इस पे. Be well qualified in anthropology or the relevant specialization related to the project. तो बेसिकली यहाँ आप ये समझ लो कि जो इंसान सुपरवाइजर है मास्टर ऑफ आर्ट एंथ्रोपोलॉजी के प्रोजेक्ट के लिए, वो एटलीस्ट उसका जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर ऑफ आर्ट एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए, प्लस उसको सेम फील्ड में 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरीज मैच करेंगे तब जाके वो आपका सुपरवाइजर बन सकता है. ठीक है, इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन है, लाइक PhD भी हो सकते हैं, बट the most important thing is you have to go to your study center, meet with the coordinator of the study center and ask him to assign you a supervisor. ठीक है, तो अगर वहां पे क्वालिफाइड सुपरवाइजर अवेलेबल है तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे, एल्स आपको बाहर से सुपरवाइजर लेना होगा. किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसा कोई भी जिसके पास वो क्वालिफिकेशन हो. ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक. तो मैंने पहले बताया
कि गाइड के कंसल्टेशन में आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे, ठीक है. It should be related to anthropology. So obviously, if you're making the project of anthropology, your topic must be related to it. Matches your academic interest. आपके इंटरेस्ट को मैच करना चाहिए. आपने कोई बोरिंग टॉपिक नहीं लेना है जिसपे आपका कोई इंटरेस्ट ना हो. जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो टॉपिक आप लीजिए. इज प्रैक्टिकल एंड फिजिबल. ऐसा कोई टॉपिक लेना नहीं लेना है जो जिसका स्टडी प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है. तो ट्राई टू टेक इजी टॉपिक्स फॉर स्टडी. हैज एडिकेट स्कोप फॉर फील्ड वर्क, जिसमें फील्ड वर्क किया जा सके. कैन बी कंप्लीटेड विद इन द अवेलेबल टाइम, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो. तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है while selecting the topic. How to prepare the synopsis? Prepare the synopsis after finalizing the topic with a supervisor. It should clearly explain what you intend to study and how to research. So basically, टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपको सिनॉप्सिस को टच करना है और इन द सुपरविजन ऑफ योर गाइड. कंपोनेंट्स ऑफ द सिनॉप्सिस. अब हम आएंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे सिनॉप्सिस के अंदर, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट चीज है. जब आप सिनॉप्सिस बनाओगे तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू इंक्लूड. ओके, द फर्स्ट थिंग इज टाइटल ऑफ द स्टडी. ऑब्वियसली द टॉपिक इज टाइटल ऑफ द स्टडी. एंड देन इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखोगे सिनॉप्सिस के अंदर 3-4 पेज आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. और शुड बी properly seated, like proper in-text reference आपको इंट्रोडक्शन में डालना है. ओके, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखना है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स 3 या 4, नॉट मैक्सिमम 3 या 4 आपका ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए. रिव्यू ऑफ लिटरेचर. Review of literature are those studies which has already been done before by other researchers in your field. Okay, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको डालना है. कम से कम 10 से 15 रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप डालिए प्रपोजल के अंदर, सिनॉप्सिस के अंदर, विथ प्रॉपर रेफरेंस. और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का एक पैटर्न होता है, वो आप फॉलो कर सकते हैं. इफ यू डोंट नो, you can go to my channel and see how to write the review of literature. काफी सारे synopsis को मैंने explain किया है other streams के भी. तो उन स्ट्रीम्स के भी हालांकि लिखने का तरीका तो वही होता है, कोई भी स्ट्रीम हो. तो आप देख सकते हो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखना है उन सिनॉप्सिस में, जो सिनॉप्सिस मैंने एक्सप्लेन करे हैं. उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है. तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन. ओके, स्टडी एरिया, किस स्टडी एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हो. यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या है आपके स्टडी का. सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक क्या है. मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड प्लान्स. ये सारी बातें मैंने काफी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखी हैं, ठीक है. सो इनको ज्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स यू कैन राइट इन द कमेंट. I'll personally tell you what is the meaning of that and how can you write it. Okay, and you can also contact on our WhatsApp number given on the screen to get personalized help for your project report. ठीक है. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद आप एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिखोगे. तो ये सिनॉप्सिस है तो आप आउटकम्स लिख नहीं सकते. तो आप ये इमेजिन करोगे कि क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं जो कि मैं जब रिसर्च करूंगा तब आएंगे. तो वो आउटकम्स आपको लिखने हैं वहां पे, ठीक है. देन यू हैव टू राइट रेफरेंसेस. रेफरेंस शुड बी APA एंड 7th एडिशन, ठीक है. तो रेफरेंस राइटिंग स्टाइल भी अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि रेफरेंस कैसे लिखना है. इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है. ओके, हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अब सिनॉप्सिस आपका प्रिपेयर हो गया. नाउ यू हैव टू मेक द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर टाइटल पेज आएगा, कवर पेज.
कवर पेज, लाइक उसमें आपका टाइटल होगा, इग्नू का लोगो होगा, आपके इन्फॉर्मेशन होंगे जैसे नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर कोड एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर का नाम होगा। तो ये सब सारी चीजें टाइटल पेज में आ जाएंगे, कवर पेज में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या कंटेंट्स हैं आपके प्रोजेक्ट में वो आप डालोगे। लिस्ट ऑफ टेबल एंड फोटोग्राफ्स, जो भी आपके टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उनके लिस्ट यहाँ पे आप डालोगे थर्ड नंबर पे। देन एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये इस पर्टिकुलर उसमें गाइडलाइन में दे रखा हुआ है। ये गाइडलाइन आप ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्नॉलेजमेंट का स्पेसिमेन और कवर पेज का स्पेसिमेन इसमें दे रखा हुआ है। और उसके बाद ये देखो, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका ये समझ लो आपका ये चैप्टराइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड चैप्टर स्टडी एरिया एंड पीपल, फोर्थ चैप्टर मटेरियल्स एंड मेथड्स, देन फिफ्थ चैप्टर डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, देन सिक्स चैप्टर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ऐसे करके ये चैप्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद रेफरेंस लिखना है जो कि हम सिनॉप्सिस में भी डाला है। और अपेंडिक्स, ये अपेंडिसेस क्यों होता है, अगर आपने कोई क्वेश्चन यार यूज किया या सर्वे या फिर इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वो सारे आप इसमें के अंदर डालोगे, ठीक है, अपेंडिसेस के अंदर। तो ये हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ सबमिशन, सबमिशन के लिए क्या करना है, सबमिट द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस फॉर अप्रूवल बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च। तो अब रिसर्च से पहले सिनॉप्सिस बना के सबमिट करोगे। जनवरी सेशन में होता है बिफोर 31 मई एंड जुलाई सेशन में बिफोर 30 नवंबर। हाउ एवर ये जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड होते रहते हैं, तो आप इग्नू के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन, ओके। तो जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा तो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन इग्नू के अंदर आपको वो बाइंड करके फाइनल प्रोजेक्ट आपको भेज देना है विथ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा, विथ सर्टिफिकेट, विथ एक्नॉलेजमेंट एंड विथ फाइनल रिपोर्ट, ओके। और प्रोजेक्ट का सबमिशन का ये है डेट, ठीक है, बिफोर 31 अप्रैल फॉर जुलाई सेशन एंड जनवरी सेशन के लिए 31 अक्टूबर। इसके लिए भी डेट एक्सटेंड होते रहते हैं, तो वो आपको वेरीफाई करना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं कि क्या क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। द प्रोजेक्ट मस्ट बी ओरिजिनल, तो प्लेजरिज्म आपको अवॉइड करना है। सेकंड नंबर पे वही देखा है, प्लेजरिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन इंग्लिश, ये जरूरी नहीं है इंग्लिश, आप हिंदी में भी सबमिट कर सकते हो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो। अच्छा होता है इंग्लिश में आप सबमिट करोगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा आपको वर्ड्स समझ में नहीं आते रहते हैं, कुछ कुछ क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं, इसीलिए खैर आप दोनों मीडियम में सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अप्रोक्सीमेट लेंथ 10,000 वर्ड्स का होना चाहिए। आपको A4 साइज का पेपर यूज करना है प्रिंटिंग के लिए। और जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.5 होना चाहिए। लाइक ये जो लाइन स्पेसिंग इसे कहते हैं, ये जो है ये दो लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो 1.5 का होना चाहिए। सबमिट द रिपोर्ट इन स्पाइरल बाउंड फॉर्मेट। देखो अब इसमें क्या क्या रखना है, अप्रूव्ड सिनॉप्सिस, मेंटर्स अप्रूवल, सर्टिफिकेट ओरिजिनलिटी, एरिया मैप, फील्ड फोटोग्राफ्स, ये सारे अटैच करने हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब इवैल्यूएशन, खैर इवैल्यूएशन का अब आपको ये इसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपके प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट से कम आपको 50% मार्क ऑब्टेन करने होंगे टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो ये काफी सारी बातें थी जो मैंने ओरिजिनल गाइडलाइंस एक्सट्रैक्ट करके आपको बताए हैं।
इसके अलावा भी आपका कोई क्वेरी है, you can write in the comment box or contact on the WhatsApp number given us on the screen. I'll personally help you for that. Or if you don't have enough time to make your project, you can consult with our associates. They will make the project for you, and you just have to submit it in the university. Okay, so thank you for watching this video. I hope this guide has helped you understand the complete process of the IGNOU Mani 001 project under Master of Arts in Anthropology program. If you found this video helpful, don't forget to like, share it with your classmates, and subscribe to Sumit's Academic Zone for more IGNOU project updates, tutorials, and academic guidance. If you have any question regarding your project topic, synopsis, guide approval, project report, or submission process, feel free to ask in the comments. I will be happy to help. Thanks for watching. See you in the next video.